برطانیہ میں حقیقی آزادی مارچ پر فائرنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ پی ٹی آئی عہدیداران اور کارکنان پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شرکاء نے شدید بارش کے باوجود بھی احتجاج جاری رکھا۔ تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے پی ٹی آئی کارکنوں کا مظاہرہ۔ مظاہرے کے شرکاء نے عمران خان پر ہوئے قاتلانہ حملے پر حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ہائی کمیشن کے سامنے ہونے والے مظاہرے میں لندن سمیت برطانیہ کے دیگر شہروں سے پی ٹی آئی برطانیہ کے عہدیداران کے ساتھ ساتھ کمیونٹی، بچوں، بڑوں اور خواتین سمیت بڑی تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی۔ شدید بارش کے باوجود بھی مظاہرین نے احتجاج جاری رکھا۔ خان صاحب ایک معمولی انسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا ہے اس کام کے لیے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ عمران خان کوئی معمولی انسان نہیں، وہ پاکستان کی پہچان ہے۔ پارٹی عہدیداروں نے شرکاء کا جوش بلند کیے رکھا۔ ان کے پاس یہی آخری حل تھا کہ عمران خان پر گولیاں چلائیں اور ان کو کس طریقے سے راستے سے ہٹائیں، لیکن اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو زندگی دی ہے اور وہ اسی لیے دی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جنگ جاری رکھ سکیں اور اس جنگ میں انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی۔ یہ سمجھ لے کہ ہمارے حوصلے اس چیز سے دبنے والے نہیں ہیں، ہمارے حوصلے اور بڑھتے ہیں، ہمارا لیڈر اور مضبوط ہو کر باہر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان gets behind, becomes prime minister again, and that's what we vouch for and that's what we wait for. عوام اس وقت اتنا زیادہ مانتی ہے، ان پہ اس طرح کا بزدلانہ حملہ کرنا، آپ کو فائٹ کرنی ہے، آپ فیلڈ میں آئیں، آپ الیکشنز میں آئیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں and then see what publics want. Let the people of Pakistan decide. ہماری اور کوئی ڈیمانڈ نہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے اور ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں، پوری اوورسیز کمیونٹی ساتھ ہے۔ 22 کروڑ عوام کے سینے میں گولی ماری گئی ہے۔ He's gone so crazy that Imran Khan has almost been assassinated and we're here to protest against Nawaz Sharif and his mafia. عمران خان نے ہمارے لیے گولیاں کھائی ہیں تو یہ بارش کے قطرے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہم نکلے اپنے کاز کے لیے اور اپنی تحریک کے لیے اور اس تحریک کو ہم جو لازمی کامیاب کریں گے۔ Imran Khan is our leader. We're here to give justice. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے میٹروپولیٹن پولیس بھی موجود تھی۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کی طرف سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف مانچسٹر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں پی ٹی آئی عہدیدار اور کارکن بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ مظاہرین نے پی ڈی ایم حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے حملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے کا مزید احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ برطانیہ اور یورپ میں پی ٹی آئی کارکن اپنے قائد عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ مانچسٹر میں بھی پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ برطانیہ نے پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ برطانیہ کے صدر آصف بٹ، نائب صدر اخلاق وڑائچ، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری چودھری شاہد انور، وومن سیکرٹری روبینہ اقبال، یوتھ ونگ کے صدر عثمان وڑائچ، جنرل سیکرٹری غضنفر علی، شبانہ بیگم، نسرین کوثر، سابق جنرل سیکرٹری وقاص جوید اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اظہار یکجہتی کیا اور قاتلانہ حملے میں محفوظ رہنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے قاتلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے پرامن لانگ مارچ پر حملے میں ملوث افراد کے خلاف نعرے بازی کی اور ان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کے صدر آصف بٹ اور مظاہرے کے دیگر شرکاء نے احتجاجی مظاہروں کو جاری رکھنے کا اعلان کیا اور اس عہد کا اظہار کیا کہ وہ اپنے قائد عمران خان کے شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں سارے اوورسیز کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم پورے مانچسٹر کے ساتھ مل کر جو ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے سارے پاکستانی اور اوورسیز لوگوں کو بہت دکھ اس بات کا ہے کہ یہ لوگ اپنی کمینی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے جو عمران خان کے اوپر حملہ ہوا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گولیاں برسائی گئی یہ ہمارے اوپر، ہمارے فیوچر کے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے۔ ہمارے قائد جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کل حفاظت میں رکھا اور ایک بہادر پاکستانی کی ایفرٹ کی وجہ سے وہ بزدل قاتل اپنے حملے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جو یہ بزدلانہ حرکت کی ہے انہوں نے امپورٹڈ حکومت نے اور یہ وزیر داخلہ اور یہ وزیر خارجہ جو مل کے یہ ایسی حرکتیں کرا رہے ہیں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ احتجاجی مظاہرے میں نارتھ ویسٹ برطانیہ سے پی ٹی آئی کارکن، اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی مختلف تنظیمیں اور خواتین و حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر۔
ओल्डहम में इंडस हेल्थ नेटवर्क यूके की जानिब से चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में इंडस हॉस्पिटल के बानी डॉक्टर अब्दुल बारी खान, फिल्म, टीवी और स्टेज के मारूफ पाकिस्तानी अदाकार सुहेल अहमद ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने 70,000 पाउंड से ज़ायद के अतियात पेश किए। डिनर तकरीब का अहवाल राजा वाजिद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पहले बरतानवी तर्ज के फ्री हेल्थ नेटवर्क के लिए ओल्डहम में इंडस हेल्थ नेटवर्क यूके की जानिब से चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में इंडस हॉस्पिटल के बानी डॉक्टर अब्दुल बारी खान, पाकिस्तान फिल्म, टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार सुहेल अहमद ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब का आगाज पाकिस्तान के कौमी तराने से किया गया। डॉक्टर इब्राहिम जमाली और सुहेल अहमद ने इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क के अगराज व मकासद और इसकी अब तक की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। चैरिटी डिनर तकरीब में मुखय्यर अज़ात ने 70,000 पाउंड से ज़ायद के एहतियात पेश किए। तकरीब में पाकिस्तान से आए स्टेज, टीवी और फिल्म के अदाकार सुहेल अहमद और डॉक्टर ताहिर शहीद ने अपने मज़ाहिया, शायरी और खाकों से शुरका को खूब महसूस किया। मीडिया से बात करते हुए इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क के बानी डॉक्टर अब्दुल बारी खान, मरूफ अदाकार सुहेल अहमद और दूसरों का कहना था कि यह हॉस्पिटल कैश काउंटर लेस होने के साथ साथ बिल्कुल फ्री है, जहाँ किसी भी मरीज से कोई पर्ची, फीस या दवाई के पैसे नहीं लिए जाते। और बेशक ये अस्पताल सफेद पोश लोगों जो किसी के सामने अपने हालात बयान नहीं कर सकते, उनकी इज्जतों का भी रखवाला है। आज जो टर्न आउट था बहुत ज़्यादा था, अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद थे और दिल खोल कर इन्होंने एहतियात दिए हैं। We've raised almost 70,000 pounds in the presence of the founder Dr. Abdul Bari himself, and inshallah this money will go to help our needy brothers and sisters who are still suffering from the floods in Pakistan. ये मुकम्मल चैरिटी 100% जो है फ्री इलाज करता है और बिला तफरीक सबका इलाज करता है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। हॉस्पिटल जो हमारा है इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क्स के साथ मिल जाए और इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क्स ही चलाएंगे इंशाल्लाह, और हम उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। बहुत कम चैरिटीज़ होती हैं जिनके एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इतने हैवी होते हैं। इट्स वेरी गुड टू हियर कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है ज़ीरो एंड माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इंडस हेल्थ नेटवर्क हमेशा अपनी बेहतरीन काविशें करता रहा है, इसी का सिलसिला यहाँ भी इसी तरह तसलसल के साथ हमने देखा और लोगों में बेपनाह जज्बा है। इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क के पाकिस्तान के अंदर जो जारी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें लाखों मरीज़ों को फ्री और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है, उसको सपोर्ट करना है, इस ताउन को जारी रखना है। सफ़ेद पोश तबका है जो बता नहीं सकता कि उनकी ज़रूरत कैसे पूरी हो रही है या उनको क्या चाहिए, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि उनकी ज़रूरियात का ख्याल करते हुए हमें अपने जो अतियात हैं वो ऐसी जगह पे लगाने चाहिए जहाँ पे वो तबका भी, उनको भी सारी सहूलतें मुयसर हों। तकरीब में इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क से वाबस्ता अफराद में डॉक्टर इब्राहिम जमाली, डॉक्टर नबील, फवाद जफ़र, डॉक्टर ताहिर शहीद, तसद्दुक हुसैन, अब्बास कुरैशी, सायरा कुरैशी, नफीसा वसीम, डॉक्टर हुमा सदीकी, अनवर शाद, चौधरी नसर इकबाल, मौलाना मोहम्मद इकबाल और असलम जलाल के अलावा बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में इंडस हेल्थ नेटवर्क से जुड़ी मुख्तलिफ शख्सियात को एजाज़ी सर्टिफिकेट भी दिए गए। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। बज़्म सुखन बरतानिया के ज़ेर एहतमाम मगरबी लंदन में आलमी मुशायरा और जश्न डॉक्टर नूर अमरोही मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बरतानिया, अमरीका और दीगर ममालिक से शुअरा ने शिरकत की। डॉक्टर नूर अमरोही और शाज़िया खान ने अमरीका से खुसूसी तौर पर मुशायरे में शिरकत की। शुअरा ने खूबसूरत अंदाज में शायरी पेश करके महफिल को चार चांद लगा दिए। मज़ाहिया शायर सलमान गिलानी ने अपना कलाम सुनाकर हाज़रीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। तफसीलात लंदन से सलीम साबरी की रिपोर्ट में। हर संग मुझको दर्द का दजला दिखाई दे, फिर करबलाए वक्त का चेहरा दिखाई दे। मैंने सुना है भाभी को है जिन चिमट गया, वो बोला खुद ही भुगतेगा जिन, मेरा क्या कसूर। लंदन में उर्दू जबान व अदब के चर्चे। बज़्म सुखन बरतानिया के ज़ेर एहतमाम मगरबी लंदन के एलिंग टाउन हॉल में आलमी मुशायरा और जश्न डॉक्टर नूर अमरोही मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बरतानिया और अमरीका से नामवर शोरा ने कसीर तादाद में शिरकत की। उर्दू अदब से लगाव रखने वाले लोगों की कसीर तादाद इस आलमी मुशायरे को देखने के लिए हॉल में मौजूद थी। कि तुम ही आखिरी मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जुर्म है हमसे दोबारा
मशहूर शायर डॉक्टर नवार अमरोही और शादिया खान अमरीका से खुसूसी तौर पर मुशायरे में शरीक हुए। शुरा ने डॉक्टर नूर अमरोही की उर्दू अदब के लिए शानदार खिदमत पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि डॉक्टर नूर अमरोही एक समाजी कारकुन और मुसन्निफ हैं और उन्हें शुमाली अमेरिका और कनाडा में उर्दू अदब का मुहाफिज समझा जाता है। इस मौके पर शोरा ने अपना कलाम सुनाकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। छोटी सी एक खता की तलाफी न कर सके, महफिल में कोई बात इजाफी न कर सके, महफिल में कोई बात शोरा कराम ने मजमूम कलाम के जरिए डॉक्टर नूर अमरोही की अदबी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान के मशहूर मज़ाहिया शायर सलमान गिलानी ने अपनी मज़ाहिया नज़में सुनाकर हाज़रीन को कहके लगाने पर मजबूर कर दिया। साहिब महफिल डॉक्टर नूर अमरोही, मशहूर शायरा शादिया खान, बज़्म सुगन के सदर सुहेल जर्रार, कैसर वजदी, डॉक्टर अंजुम समेत दूसरे नामवर शोरा ने अपनी शायरी के जरिए हाजरीन से खूब दाद वसूल की। उनका जब साया दुआएं काम आती हैं कि दुनिया से गुजर के भी ये माए काम आती हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल जरार और बज़्म सुगन के दीगर शुरका महफिल का कहना था कि उर्दू हमारी कौमी जबान है जिसे ज्यादा से ज्यादा फरोग देना चाहिए। उर्दू अदब के फरोग के लिए काम करने वाली शख्सियात तहसीन के लायक हैं। डॉक्टर नूर अमरोही और शादिया खान ने कहा कि उन्हें लंदन आकर बहुत अच्छा लगा। वो बज़्म सुगन के शुक्रगुजार हैं जो उर्दू अदब के हवाले से इस तरह के मुशायरे मुनक्किद करते हैं। बुनियादी तौर पे उर्दू हमारी कौमी ज़बान भी है, हमारी मादरी ज़बान भी है, इसके फ़रोग के लिए हमें काम करना चाहिए। आज इस तारीखी मुशायरे के लिए और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ सुहेल जरार साहब को। जश्न मनाना जो है बज़्म सुखन की रिवायत है, हम हर साल जश्न मनाते हैं। सबसे पहला जश्न हमने जश्न अकील दानिश मनाया और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। लेकिन आज का ये जश्न डॉक्टर नूर अमरोही जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा तारीख साज लम्हा था। इसकी वजह यह है कि इसके लिए अमेरिका से, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, हर जगह से लोग तशरीफ लाए। आलमी मुशायरे में डॉक्टर नूर अमरोही की उर्दू अदब के हवाले से कोशिशों का एतराफ करते हुए एलिंग के साबका मेयर काउंसलर मुनीर अहमद की तरफ से सर्टिफिकेट और बज़्म सुखन की जानिब से एजाजी शील्ड भी पेश की गई। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में पाकिस्तान सोसाइटी एडिनबरा और अदबी डेरा एडिनबरा के ताउन से इंडस हेल्थ नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम एक चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मारूफ मज़ाहिया फनकार सुहेल अहमद थे। एडिनबरा की सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी खालिद परवेज की ये रिपोर्ट देखते हैं। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में पाकिस्तान सोसाइटी एडिनबरा और अदबी डेरा एडिनबरा के ताउन से इंडस हेल्थ नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम एक चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मारूफ मज़ाहिया फनकार सुहेल अहमद थे। एडिनबरा की सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मारूफ शायर इश्तियाक मीर ने प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मारूफ मज़ाहिया फनकार सुहेल अहमद की मज़ाहिया बातों से हाज़रीन खूब महसूस हुए। इस मौका पर शेर व शायरी भी हुई। मारूफ सिंगर नईम कुरैशी ने वतन के गीत सुनाकर खूब दाद वसूल की। सुहेल अहमद की अपील पर सिर्फ 2 घंटों में एडिनबरा के लोगों की तरफ से 30,000 पाउंड से जायद रकम जमा की गई। लोगों का कहना था हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा दिल खोलकर इस किस्म की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करते हैं। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए एजाज नज़ीर चौधरी, चेयरमैन पाकिस्तान सोसाइटी एडिनबरा, ताहिर बशीर चौधरी, चेयरमैन अदबी डेरा एडिनबरा, स्कॉटलैंड के मारूफ सिंगर नईम कुरैशी, सैयद इमरान अली शाह, मारूफ नातख्वां चौधरी मोहम्मद असलम का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने भाइयों की माली इमदाद के लिए हमेशा पेश रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी से निकाले। लोगों की भी एक कसीर तादाद यहाँ मौजूद थी और उन्होंने दिल खोल कर इंडस के लिए अतियात दिए हैं। इंडस हॉस्पिटल और डॉक्टर बारी जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला की रहमतें भी हैं उनके साथ। हमने आज तकरीबन ओवर 30,000 पाउंड यहाँ पर इकट्ठे किए और ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक कदम है। हमेशा कहता हूँ पाकिस्तानी एक बहुत अच्छी कौम है और ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और कोई भी अच्छा कॉज आती है तो वो दिल खोल कर हिस्सा लेते हैं। ख़ासतौर पर कोई कुदरती आफात आए उस वक्त भी और आम हालात में भी। तो आज का फंक्शन भी कोई 200 से ज़्यादा लोग यहाँ जमा थे और काफ़ी इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। एडिनबरा के लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज में इस तकरीब में हिस्सा लिया और इसका हिस्सा बनते हुए फंड रेजिंग का ये मामला मुकम्मल किया है और इंडस हॉस्पिटल के लिए जो हम लोग निकले हुए हैं ये सिलसिला बड़े अच्छे अंदाज से जारी और सारी है। अजीज़ी साहब और जुनेद साहब जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए थे उनके ख्यालात से लोगों ने बड़ा महजूज हुए
اور انڈس ہاسپٹل کے لیے سب نے بڑھ چڑھ کر امداد کی. یہ بہت منظم اور بہت کامیاب پروگرام تھا اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل ایڈنبرا قابل مبارکباد ہیں, قابل تحسین ہیں, اور خصوصاً جناب طاہر بشیر صاحب جن کی محنت اور کاوش سے یہ پروگرام ترتیب ہوا. لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا. ہماری کمپنی نے ان کو سپانسر بھی کیا ہے. انشاءاللہ فیوچر میں بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں. یہ پاکستان کا واحد ایسا ہاسپٹل ہے جہاں پہ 100% مفت علاج کیا جاتا ہے, وہ چاہے امیر ہو یا غریب, اسے اسیسمنٹ کے لیے نہیں بٹھایا جاتا. اور یہاں پہ جب اس ہسپتال کے لیے اور پاکستانی جو غریب مساکین ہیں ان کے لیے جب یہاں آتے ہیں تو یہ لوگ دل کھول کے محبت کرتے ہیں اور حصہ ڈالتے ہیں اپنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈنبرا والے جو ہیں وہ انتہائی محبت کرنے والے لوگ ہیں. Everybody contribution to this program and that everybody enjoy, even me myself, and we are in future also. Really, we go to the helping the like that in this like that situation. اس طرح کا فنکشن کرنا چاہیے تاکہ کمیونٹی اکٹھی ہو اور ہم کمیونٹی کو بتا سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, پیچھے ہمیں کیا ہو رہا ہے, اور ایک دوسرے بھائی بہن کو ہم بڑے ٹائم کے بعد ملنا بھی ہو جاتا ہے. سو اٹ واز ایبسولوٹلی امیزنگ فنکشن. اوورسیز پاکستانی ہمیشہ ہی جب بھی کوئی پاکستان کے لیے فنکشن ہوتا ہے اس کے لیے دل کھول کے ہیلپ کرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا حق بھی ملے گا. بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو لوگ بھی آئے ہیں. ہماری دعا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور رزق میں برکت ڈالے, اور جن کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں وہاں بھی ساری مشکلات دور ہوں. ادبی ڈیرا کے چیئرمین طاہر بشیر نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. پروگرام کے آخر میں مہمانوں کی پاکستانی کھانوں سے تواضع کی گئی. انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کی طرف سے تعریفی سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے. خالد پرویز, 92 نیوز, ایڈنبرا, اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں انڈس ہاسپٹل کی طرف سے ایک چیریٹی ایونٹ کا اہتمام کیا گیا جس میں اسکاٹ لینڈ کی سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی اور بڑھ چڑھ کر اس ایونٹ میں حصہ لیا. خالد پریز, 92 نیوز, ایڈنبرا, اسکاٹ لینڈ. فیضان اسلام مرکز والتھم اسٹو کے زیر اہتمام انٹرفیت کانفرنس ہوئی جس میں مختلف مذاہب کے سربراہان کے ساتھ ساتھ سرکاری اداروں کے سربراہان نے بھی شرکت کی. والتھم فارسٹ کی میئر کیرن ہیملے, والتھم فارسٹ کے بورو کمانڈر سائمن سمیت دیگر سرکاری افسران بڑی تعداد میں تقریب کا حصہ بنے. اس موقع پر مسلم کمیونٹی کی جانب سے مختلف کاؤنسلرز اور کمیونٹی کی اہم شخصیات بین المذاہب کانفرنس میں شریک ہوئیں. تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں. برطانیہ میں بسنے والے مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنے اور اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں پائی جانے والی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے والتھم اسٹو میں بین المذاہب کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. کانفرنس کے آرگنائزر حضرت علامہ غلام ربانی نے کہا کہ برطانیہ ایک ملٹی کلچر معاشرہ ہے. اس میں بسنے والے لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے. اس قسم کی ملٹی کلچر سوسائٹی میں تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مدد دیتی ہے. والتھم فارسٹ کی میئر کا کہنا تھا آج کی کانفرنس بہت عام رہی. اس میں مختلف رنگ و نسل کے لوگوں نے شرکت کی. اس قسم کی کانفرنسز کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہاں برطانوی معاشرے میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں. کانفرنس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انٹرفیتھ کانفرنس کے انچارج علامہ غلام ربانی افغانی نے کہا کہ اس کانفرنس میں اسلام کے بارے میں معلومات شیئر کی جاتی ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اسلام کے بارے میں اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا سدباب ہو سکے اور لوگوں کے سامنے اسلام کا حقیقی فلسفہ پیش کیا جا سکے. جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اسلام کے بارے میں اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا سدباب ہو سکے, اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے مسائل جو یہاں پر اس معاشرے میں ہیں ان ذمہ دار لوگوں کو معلوم ہو تو اس کے ذریعے سے پھر مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, جس سے ہمیں مسلمانوں کو اس حوالے سے اس معاشرے کے ساتھ جڑے رہنے میں یہ کانفرنسیں اور اس طرح کے انٹرفیتھ ڈائیلاگ بہت مفید ثابت ہوتے ہیں. والتھم فارسٹ کے بورو کمانڈر سائمن نے کہا کہ آج کی کانفرنس انتہائی فائدہ مند رہی جس میں مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوئے اور آپس میں مختلف موضوعات کے اوپر بحث کی گئی. دیگر شرکاء کا کہنا تھا برطانیہ میں اس قسم کی کانفرنس سے لوگوں کو ایک دوسرے کے درمیان غلط فہمیاں دور کرنے میں مدد ملتی ہے. بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے ایسی تقریبات کا انعقاد کرنا بہت ضروری ہے. I've been delighted to be invited here today by Sheikh Rabbani. It's been a fabulous event. Always really impactful when all of the community members and the faith groups come together in a united forum so we can discuss
local issues and resolve local issues together. Interfaith events are very important in our society because it contributes to the peace and social cohesion within our society, especially in the difficult times the world is going through. We are very proud of our diverse society in Ultan Forest, especially as we are in the mosque. Today has been a fabulous event. Many different cultures, creeds and colours, and this is what it's about. Interfaith, intercultural events bring us all together and make us much richer as a culture. हज़रत मौलाना गुलाम रब्बानी अफ़गानी की ज़ेरे निगरानी फैज़ान इस्लाम मस्जिद वेलथम स्टोव में होने वाली इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम कम्यूनिटी काउंसलर्स और सरकारी इदारों के अफसरान के साथ साथ मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले पेशवाओं ने भी शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। कनाडा के शहर टोरंटो में पाकिस्तानी सकाफत और पंजाब के देसी रंग देखकर पाकिस्तानी हैरान रह जाते हैं। पंजाब की रंगीली चारपाइयाँ हों या लस्सी वाली चाटियाँ, ठंडे पानी के घड़े हों या फिर कुएं, आपको हर तरफ पंजाबी कल्चर की झलक दिखाई देगी। दियार गैर में देसी रंग सजाने का ख्याल हाफिजाबाद के फैसल चट्ठा को कैसे आया, ये जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हसन अवान से, जिन्होंने टोरंटो में इस मुनफरिद रेस्टोरेंट के हवाले से खुसूसी बातचीत की है। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त कनाडा के शहर टोरंटो में फैसल चट्टा साहब मौजूद हैं, जो कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के और स्पेशली पंजाब के कल्चर की मुँह बोलती तस्वीर हैं टोरंटो के अंदर। हमने देखा कि इन्होंने एक ऐसा रेस्टोरेंट, खूबसूरत रेस्टोरेंट डिज़ाइन किया है जिसके जो खाने हैं वो तो ज़ाहिर है सारे पंजाब का टेस्ट है ही है, लेकिन इन्होंने रेस्टोरेंट को इस तरीके से कल्चर्ड किया है कि आपको पंजाब के जो 5 दरिया हैं उनके आपको यहाँ मुख्तलिफ पवेलियन नज़र आएंगे, उसके अलावा चारपाइयाँ हैं, उसके अलावा हर तरह का पंजाब का कल्चर आपको यहाँ पर नुमाया नज़र आएगा। इन्हीं से पूछते हैं कि सबसे पहले इनको दियारे गैर के अंदर ऐसा आइडिया कैसे ज़हन में आया? अस्सलाम जी, मेरा फैसल चट्टा मेरा नाम है जैसे आपने कहा, और मैं हाफिजाबाद के एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो क्योंकि मैं ख़ुद एक काश्तकार का बेटा हूँ, गांव में पला पड़ा हूँ, तो मेरा सिर्फ मकसद ये था कि यहाँ पे हम कल्चर से दूर हो रहे हैं। खाना तो हर जगह मिलता ही है, तो एक तो हम अपने ऑथेंटिक जो टेस्ट है उसको मुतारफ़ करवाएं, दूसरा कल्चर को लेके साथ चले। जैसे आपने 5 दरियाओं का कहा, ये भी थोड़ा एक टच था कि हम थोड़ा थोड़ा बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता आप मुतारफ़ करवाएं। वो पूछते हैं ये क्या है, हम उन्हें बताते हैं कि भाई ये पंज आब इससे बना है, तो उससे काफ़ी फ़र्क बच्चे भी अब एंजॉय करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो दूसरी दफ़ा आता है वो ज़्यादा एंजॉय करता है। फिर आपने कल्चरल स्टफ़ भी देख लिया। अब आइंदा भी इंशाल्लाह इसी को है कि रुकना नहीं है, इससे आगे दूसरे जो कंट्री अपने शहर हैं उनको लेके साथ चलना। चट्टा साहब, चारपाइयाँ, अपना घड़े हो गए, यहाँ पे मूड़े हो गए, इसके अलावा ये अपना कुआं हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम पंजाब के किसी गांव में हैं। मुश्किल नहीं है ऐसी चीज़ें सारी यहाँ पर संभल करने में? कुछ दोस्त हैं यहाँ पे जो पहले ही काम करते थे, उन्होंने बड़ी हेल्प की इसको हमारे ये फर्नीचर प्रोवाइड करने में, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं आई। बाकी अब आहिस्ता अब तो हर चीज़ अवेलेबल भी है। ये आज चीज़ें तो आप सही ले आए, लेकिन हमने देखा कि जो आपके खाने का टेस्ट है उसके अंदर भी एक पंजाब की खुशबू नज़र आती है, तो ये आपने स्पेशल शेफ़ भी वहाँ से मंगाए पाकिस्तान से? जैसे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में बनता है कि अपने ग्राइंड करते हैं, उसी टेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। यस, कुछ इंग्रेडिएंट जैसे पानी नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि 80% हम रिज़ल्ट दे सकें कि वही ऑथेंटिक टेस्ट हो। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पर तो है आप बना रहे हैं, टोरंटो के अलावा भी आपका ख्याल है कि दूसरी जगह पर भी इसी तरह का कल्चर पाकिस्तान का प्रमोट होना चाहिए? जी इंशाल्लाह मेरा दिल है पहले ओंटारियो में ही, दूसरे सिटीज़ में, और उसके बाद मॉन्ट्रियल मेरा टारगेट है। तो कोविड ने रोक दिया था, आपको पता है कैसे हालात थे, तो इंशाल्लाह कोशिश है कि जल्द से जल्द हम इसको एक्सपेंड करेंगे, नॉट एज ए फ्रेंचाइज, लेकिन यह है कि हम खुद इसको एक्सपेंड करेंगे और इसी तरह कल्चर लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। देखा आपने फैसल चट्टा साहब ने बताया कि पंजाब के कल्चर को पूरी दुनिया में मुतारफ़ कराने के लिए हमने इस मुहिम का आगाज़ किया है और इसको हम मज़ीद शहरों के अंदर भी फैलाएंगे। जी।
अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात कल 8 नवंबर को होने जा रहे हैं। उम्मीदवारों की तरफ से इलेक्शन मुहिम आज खत्म हो गई। ऐसे में मुसलमानों के लाखों वोट भी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। उम्मीदवारों की जानिब से मुस्लिम कम्युनिटी के वोट हासिल करने के लिए उनके इलाकों में इंतखाबी तकरीबात का अहतमाम किया गया। ऐसी ही एक इलेक्शन तकरीब का अहवाल बताएंगे अमरीका से खुरम शहजाद। अमेरिका में पाकिस्तानी नियाद अमरीकी मुसलमान मुख्तलिफ शोबों में कुलीदी ओहदों पर फायज हैं। इसके अलावा वो कारोबार में भी अपना मकाम रखते हैं, जबकि सियासत के मैदान में कुछ अर्सा पहले तक मुसलमान कदरे पीछे थे, लेकिन अब मुसलमान इस मैदान में भी आगे आ रहे हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। अमेरिका में कल होने वाले मिड टर्म इंतखाबात में मुसलमान वोटर्स भी पेश हैं। ऐवान नुमाइंदगान की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार मुसलसल मुसलमान वोटर्स से राब्ते में हैं और अपनी हमायत हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। वर्जीनिया के दारुल नूर इस्लामिक सेंटर में कांग्रेस वुमेन एबिगेल स्पिनबर्गर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया और वोट की अपील की। कांग्रेस वुमेन इस मौके पर 92 न्यूज से बातचीत करते हुए पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के शानदार किरदार को सराहा और उनसे भरपूर वोट डालने की अपील की। I represent Virginia's 7th congressional district, and I am running for re-election because I want to continue serving the people of the 7th. We now have many new communities that are added to the 7th, and I am here at Dar al-Noor talking to voters, talking to members of the community about my campaign, about the work that I have done in Congress to support our community, to support the Muslim American community, to support my Pakistani American constituents, and to be present, to be a resource and to serve. दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने भी इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील की कि वो मिड टर्म इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर अपना हक राय दही इस्तेमाल करें, क्योंकि पाकिस्तानियों का वोट अमरीकी सियासत में अहम किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। मोहतरमा फातिमा जनाह की मुझे उनका एक कोट याद आया उनकी एक तकरीर से कि वोट आपके पास अपनी कौम की अमानत है और आपका हक है कि आप इसको इस्तेमाल करें और इस इमानत को महफूज करें। मैं याद कराना चाहता हूँ कि जितने भी हम लोग नंबर्स में जाके वोट देंगे, दैट मीन्स पावर फॉर आवर कम्युनिटी। हम पाकिस्तान को हेल्प कर सकेंगे और अपनी मुस्लिम उम्मा को हेल्प कर सकेंगे। अमेरिका में मुसलमान वोटर्स अपनी सलाहियतों के बल बोते पर सियासी मैदान में सामने आ रहे हैं, जिनको मुख्तलिफ कम्युनिटीज और मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद की भरपूर हमायत हासिल है। वो वक्त दूर नहीं जब हमें दीगर मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदों के साथ साथ लोकल कौंसिल से लेकर कांग्रेस और सेनेट तक मुसलमान नुमाइंदगान भी नजर आएंगे। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। सऊदी अरब में इंटरनेशनल हलाल एक्सपो का आगाज़ हो गया, जिसमें सैकड़ों कंपनियों की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं, जबकि पाकिस्तान से भी 7 कंपनियां शरीक हैं। एक्सपो में हलाल फूड से मुतल्लिक आगाही दी गई। पाकिस्तानी कारोबारी हजरात ने सऊदीया में हलाल फूड इंडस्ट्री के हवाले से इक़दामात बारे शुरका को आगाह किया। मज़ीद जानते हैं उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में 7 से 9 नवंबर तक जारी रहने वाली पहली सऊदी इंटरनेशनल एक्सपो में दुनिया भर से नामवर हलाल फूड बनाने वाली कंपनियों समेत पाकिस्तान से 7 मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉल मौजूद हैं, जो सऊदी और गैर मुल्की तजारती कंपनियों के नुमाइंदों की तवज्जो का मरकज है। सफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर अली दाहिर ने नुमाइश को खुश आइंदा करार देते हुए कहा कि पाकिस्तानी हलाल फूड के लिए सऊदी अरब एक बड़ी मार्केट है और मजमूई तौर पर ये $31 बिलियन की मार्केट है, जिसमें पाकिस्तान सालाना $400 मिलियन की तजारत सऊदी अरब के साथ कर रहा है। ये फूड स्टॉक्ड कंट्री है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ हलाल या फूड से रिलेटेड हो उसके लिए बहुत बड़ा मार्जिन है। $31 बिलियन की ये बड़ी मार्केट है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 2-3 सालों से 400 मिलियन से ऊपर की तरफ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हलाल फूड एक्सपो में कारोबारी शुरका ने अपने अपने ममालिक की खाने पीने की अशिया की नुमाइश की, जिनमें फल, सब्जियां, खुश्क मेवाजात और दूध से बनी हुई अशिया भी नुमाया थी। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार हलाल अद्वियात, हेल्थ एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट को भी एक्सपो में आए अफराद ने सराहा। नुमाइश को देखने के लिए हजारों मुल्की और गैर मुल्की सयाह और कारोबारी शख्सियात शिरकत कर रही हैं। उमैर अली, नुमाइंदा 92 न्यूज़, रियाज।